کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، پاپوں کا خدا اور لیکن اس میں اب انجینئرنگ ہوگی، ذرا صبر سے سننا ہے۔ تیار ہو، چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خاتون یہ کہہ کر اپنا بچہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے، ہائے ہائے ہائے، اس کی تربیت فرما دیجئے۔ آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے یعنی عبادت و ریاضت پر لگا دیا۔ ٹھیک ہے۔ ایک دن اس کی والدہ آئیں تو دیکھا کہ اس کا بیٹا بھوک اور شب بیداری لگاتار راتیں جاگ کر عبادات کرنے کے سبب بہت کمزور ہو گیا ہے اور جو شریف کی روٹی کھا رہا ہے، جو شریف کی روٹی کھا رہا ہے۔ وہ عورت دیکھ رہی تھی، اس کا بچہ دال کھا رہا تھا، غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں، اس کا بچہ دال کھا رہا تھا، جو شریف کی روٹی کھا رہا ہے، اس کا بچہ دال کھا رہا تھا۔ ٹائم قیامت تک جی جواب دیو نا گلاں دے، اتنی لاجیکل گلاں نے۔ جب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں، جسے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے تناول فرمایا یعنی کھایا تھا۔ اس خاتون نے عرض کی، یا غوث اعظم آپ خود تو مرغی کھائیں، میرا بچہ جو کی روٹی۔ بولنے دے، تکلیف ہوا ہے بیچارے کو، بول بول۔ یہ سن کر میرے مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک مرغی کی ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، قم بِإِذْنِی، اٹھ میرے حکم سے۔ وہ مرغا زندہ ہو گیا۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ قومی بِإِذْنِ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یعنی اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا، اٹھ میرے حکم سے، اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا، اٹھ میرے حکم سے۔ اب آپ نے نئی ڈاکٹرن کھڑی کر لی ہے، ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، پرانے بزرگ بھی یہ کام ڈال کے گئے ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ جتنے پرانے بزرگ ہیں نا، جن جن لوگوں نے کام ڈالا ہے، ڈالا پوری نیک نیتی کے ساتھ ہے، چاہے بیڑا غرق ہوا ہے بعد میں لوگوں کا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً صحیح سلامت زندہ کھڑی ہو کر آواز نکالنے لگی۔ چوتیا بنایا تم کو۔ نہیں پہلے کیا بولا؟ مرغی کھڑی ہو کر آواز نکالنے لگی۔ آہا، وہ مرغا زندہ ہو گیا۔ آہا، مرغی کھڑی ہو کر آواز نکالنے لگی۔ آہا، وہ مرغا زندہ ہو گیا۔ مولوی کی عقل پوری جی ہوتی ہے، تو ایسی عقل کا پھر ماتم ہی کرنا چاہیے نا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا کھائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں علمی کتابی بنے، آپ علمی کتابی بنیں گے تو آپ ان چیزوں سے بچ جائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ پر اللہ کا ایسا فضل و کرم تھا کہ صرف یہ مبالغے کے طور پر اور صرف ایک مداح سرائی کے طور پر نہیں، بلکہ حقیقتاً آپ کے بارے میں یہ کہنا درست ہے، حق ہے کہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ذرے کو زر بنانے والے ہیں۔ تو اڈی کے اوقات ہے نسو ادھروں۔ میں دو واقعات مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چند افراد حاضر ہوئے اور امتحاناً انہوں نے سوال کرنا شروع کیا۔ اب یہ روشن ضمیر تھے، جھوٹ ماردا اور رب تبارک و تعالیٰ کے ولی بزرگ تھے۔ میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا۔ تو سوالات کے دوران ایک شخص نے سوال کیا بابا فرید صاحب سے کہ درویش کو کتنی روحانی قوت عطا کی جاتی ہے؟ وہ انجینئر صاحب آپ کو بتائیں گے۔ اولیاء کو، بزرگوں کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے، اگرچہ بظاہر ہمارے جیسے ہاتھ اور جسم کے اعضاء ہیں، لیکن ان میں وہ روحانی طاقت ہے کہ یہ زمین کو جمع کر دیں۔ یہ سب کے سب جھوٹی باتیں انہوں نے مشہور کی ہوئی ہیں، تو یہ انہوں نے اگر ثابت کرنی ہے تو کر کے بتائیں۔ تو آ جاؤ آپ میدان میں، اس طرح نہیں جی تسی نہیں مندے اسی مننے ہاں، وہ بات مانتے ہیں جو ہوئی ہوئی ہے، قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ اور
बिल्कुल इनकलाब बर्पा कर दें। तो एक शख्स ने सवाल किया बाबा साहब से, या सैयदी ये बताएं कि दरवेश को कितनी रूहानी ताकत मिलती है, कितनी रूहानी कुव्वत होती है उसमें? असल में इन बेचारों का भी कसूर नहीं, इनके बड़े बुजुर्ग भी इनको कहानियां कराते रहे, इन्होंने वही कहानियां सुन के तो आगे बयान की, इनको क्या पता था कि आगे तो मसला खड़ा हो जाएगा। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीब लकड़ियों का गट्ठा पड़ा था, उस गट्ठे पर हाथ रखा और शाद फरमाया, दरवेश अगर लकड़ियों के गट्ठे को कहे कि सोना हो जा तो वो सोना हो जाता है। आपके जबान से ये अल्फाज अदा करने थे कि वो लकड़ियों का गट्ठा सोना हो गया। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। इसी तरह एक और वाकया है कि एक खातून आपकी बारगाह में हाजिर हुई और फरियाद की कि मेरी 3 जवान बेटियां हैं और उनकी शादी का मामला है, मेरी कुछ माली मदद फरमाएं। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुदाम से फरमाया कि दरगाह में जो कुछ है वो ला के इनकी नजर कर दो। चुप करके बैठ, जिन्नी तेरी कात है उथे रह छोड़िया। उन्होंने कहा कि आज तो सब खत्म हो चुका है। अब वो खातून जो है वो रो रही हैं। अब ये देखिए, दीनी मामलात हल करवाने के लिए भी मुसलमान उम्मत जो है बुजुर्गों का रुख करती है, और दुनियावी मामलात हो तब भी बुजुर्गों ही की तरफ जाना चाहिए, उनसे दुआ करवानी चाहिए, उनको वसीला बनाना चाहिए। ना पुरानियां गल्लां, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग, ये पुरानियां गल्लां ने इस जमाने जालियत में होता था। अब ये देखे कैसी मखलूक की हाजत रवाई फरमा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई मुआवजा नहीं ले रहे, कोई इवज नहीं ले रहे। ऊपर वाला जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के। तो हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस औरत से कहा कि बाहर जाओ और मिट्टी का एक ढेला ले आओ जी, हुण हर चीज इंजीनियरिंग होएगी। तो वो औरत गई और मिट्टी का ढेला लेकर आई। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान असर कि आपने सूरह इखलास बुलंद आवाज में पढ़कर मिट्टी का जो ढेला था उस पर दम कर दिया। जैसे ही दम किया तो वो जर्रा जर बन गया। एडी बड़ी बोंगी मारी है। माई मिट्टी दा ढेला ले आई ना ते हजरत बाबा फरीद ने अपनी तली उते रख के ना ते फरमांदे ने ला इलाहा, क्या बोला तूने? सूरह इखलास, क्या बोला तूने? ला इलाहा, क्या बोला तूने? सूरह इखलास। उनका वो मुजद्दिद अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा शरीफ पढ़िया ते फूक मारी ना ते ढेला माई नु पकड़ाया। बाबे दे हाथा च मिट्टी दा ढेला, माई दे हाथा च गया ते सोने दा ढेला। वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया और वो औरत खुशी खुशी उसको लेकर घर चली गई। अब औरत ने क्या किया, घर जाकर मिट्टी का एक ढेला लिया और पाक होकर तहारत हासिल करके माई जदों घर लेके गई ते माई नु ख्याल आया और रवायती जाली है, बाबे ने मिट्टी नु कलमा पढ़ के फूक मारी सी ते मैं भी ना मारा, पैसा ही पैसा हो गया। माई मिट्टी दा ढेले रख के ना ढेर लगा लिया ते माई कलमा पढ़ सारी रात फूका मार दी। मिट्टी की ढेले पर सूरह इखलास दम कर रही है, वो दम किए जा रही है, लेकिन मिट्टी का ढेला जो है वो टस से मस नहीं हो रहा। जनता माफ नहीं करेगी, जर्रे से जर नहीं बन रहा। 3 दिन वो मुसलसल कोशिश करती रही। 3 दिन के बाद बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज किया, सय्यदी ले लो बाबे तुम अपने, कि मैं 3 दिन से ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी मिट्टी के ढेले पर वही सूरह इखलास दम कर रही हूँ, वही तरीका अपनाया है, लेकिन ये तो हिलने का नाम नहीं ले रहा। रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं तुम्हें। ये मिट्टी जो है सोना बनने का नाम नहीं ले रही। तो बाबा साहब ने तहदीस नेमत के लिए रब तबारक व तआला के फजल का बयान फरमाया, जुबान में तो फरीद दी चाहिए ना, कि अगरचे तुमने अमल वही किया लेकिन तुम्हारे मुंह में फरीद की जबान न थी। और मैं ऐसी कहता हूं, शुक्र है हमारे उलमा के लेक्चर्स अंग्रेजी में नहीं है, वरना कोई 4 गोरे कलमा भी पढ़ रहे ना, वो कहेंगे यार ये तो सारा फ्रॉड ही है। माँ ने कहा बेटे से, बेटा नमाज पढ़ा करो। बेटा कहता है माँ नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? माँ कहते हैं पुत्रा शक्कर मिलती है। इसको कहा जाता है पहलवान अपने जोर पे गिरता है। बच्चे ने नमाज शुरू कर दी, माँ शक्कर की पुड़िया बना के जाए नमाज के नीचे रख दिया करे। बच्चा नमाज पढ़ के फारग हुआ है, जहाँ नमाज उठाया शक्कर की पुड़िया मिल गई, खुश हुआ, बच्चा पक्का नमाजी बन गया। एक दिन काफिले के साथ जा रहा है, नमाज का वक्त हो गया, बच्चे ने शोर मचा दिया, ओ काफिले वाला रुको। क्या बात है जी, क्या नमाज पढ़नी है?
हुआ है, अच्छी बात है, हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? कहता शक्कर मिलती है। शक्कर की तो मिल रही है। कहना देखो मैं पढ़ के दिखाता हूँ। ठीक है। उसने जाए नमाज बिछाया, नमाज शुरू कर दी। इधर बच्चा नमाज पढ़े, उधर माँ ने सजदे में सर रखा है। या अल्लाह मेरी लाज रख ले। इधर बच्चा नमाज पढ़े, उधर माँ ने सजदे में सर रखा है। या अल्लाह मेरी लाज रख ले। मैं तो वहां नहीं जा सकती, तू तो इल्म कुदरत से हर जगह मौजूद है। फरमाते पहले बच्चा नमाज पढ़ के जाए नमाज उठाता था, नीचे से शक्कर की पुड़िया निकलती थी। आज जाए नमाज उठाया, पूरा जाए नमाजी शक्कर का बना हुआ है। रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं तुम्हें। एक दिन काफिले के साथ जा रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया, बच्चे ने शोर मचा दिया, ओ काफिले वाला रुको। क्या बात है जी? क्या नमाज पढ़नी है? क्या बोला तूने? एक दिन आपकी वालिदा मोहतरमा मसरूफियात के बाइस जाए नमाज के नीचे शक्कर रखना भूल गई। क्या बोला तूने? एक दिन काफिले के साथ जा रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया, बच्चे ने शोर मचा दिया, ओ काफिले वाला रुको। क्या बात है जी? क्या नमाज पढ़नी है? बोला तूने? एक दिन आपकी वालिदा मोहतरमा मसरूफियात के बाइस जाए नमाज के नीचे शक्कर रखना भूल गई। बहुत चंगा नाम है। एक दिन काफिले के साथ जा रहे आहा मसरूफियात के बाइस जाए नमाज के नीचे शक्कर रखना भूल गई। आहा एक दिन काफिले के साथ जा रहे ना पुरानियां गल्ला, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग। आप नमाज से फारिग हुए, अम्मी जान ने पूछा बेटा शक्कर मिली? सादतमंद बेटे ने अर्ज की जी हाँ। ऊपर वाला जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के। मुझे हर नमाज के बाद शक्कर मिल जाती है। ये सुनते ही आप जनाब की वालिदा मोहतरमा अश्कबार हो गई, आंखों में आंसू आ गए और इस गैबी मदद पर दिल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगी। अरे यही बच्चा आगे चलकर बाबा फरीद गंजे शक्कर बन गया है। आप अपने दिमाग खोलें, खुदा के लिए इनके हाथों में ना खेलें। ये आपके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं दीन के नाम के ऊपर, हमारी आंदा आने वाली नस्लें सेकुलर हो जाएंगी। यार वो भी तो माँ ही थी ना। बेटे से कहते बेटा जाओ कुरान पढ़ने, बेटा मस्जिद में आ जाता है। ठीक है समझ गया। मौलवी साहब कहते हैं बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा कहता है ये तो मुझे आता है। अच्छा क्यों नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है ये भी याद है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह कहता है ये भी याद है। मौलवी साहब ने समझा कि शायद पहला पारा याद करके आया होगा। चलो बेटा पढ़ो सयकुलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दूसरा पारा कहता है ये भी याद है जी। तिलका रुसुल फद्दलना बादुहुम अला बाद कहता है ये भी याद है। मौलवी साहब हैरान रह गए, छोटा सा बच्चा बात क्या कर रहा है? बेटा कितना तुझे याद है? कहने लगे जी 18 पारे मुझे जुबानी याद है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बेटा कहाँ से याद किए? कहने लगे मेरी वालदा मायदा 18 पारों की हाफिजा है। अच्छा मुझे जब दूध पिलाती थी कुरान पढ़ती रहती थी, मैंने माँ की गोद से ही 18 पारे याद कर लिए। आज की माँ गाने गा रही है और दूध पिला रही है। बच्चा भी गोद से निकल रहा, वो भी 18 गानों का हाफिज होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहले खुद नाचता है, फिर घर वालों को उंगली पे नचाता है, फिर आ जाते हैं हाफिज जी कोई तवीज है जैसे दे दे, बच्चे तंग बड़ा कर देने। मैंने कहा हाफिज का तवीज वहां क्या करेगा? अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया बच्चा गीली छड़ी की मानद है, इसको जिधर मोड़ोगे मुड़ जाएगा। मैंने कहा जब मोड़ने की बारी थी तूने नाच गाने की तरफ मोड़ दिया, अब छड़ी खुश्क हो गई है, अब इसका रुख कैसे तब्दील किया जाए? साले वो आज नहीं बचते तुसी। एक औरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के पास आई। अब बाबा फरीद रहते थे दरख्त के नीचे, सारी जिंदगी दरख्त के नीचे गुजारी। लेकिन एक सेकंड, क्या बोला तूने? बाबा फरीद रहते थे दरख्त के नीचे। रुको जरा, सब्र करो,
अभी बताते हैं तुम्हें। है कि एक खातून आपकी बारगाह में हाजिर हुई और फरियाद की कि मेरी 3 जवान बेटियां हैं और उनकी शादी का मामला है, मेरी कुछ माली मदद फरमाएं। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुदाम से फरमाया कि दरगाह में जो कुछ है वो ला के इनकी नजर कर दो। क्या बोला तूने? खुदाम से फरमाया कि दरगाह में जो कुछ है वो ला के इनकी नजर कर दो। क्या बोला तूने? बाबा फरीद रहते थे दरख्त के नीचे, सारी जिंदगी दरख्त के नीचे गुजारी। आहा। खुदाम से फरमाया कि दरगाह में जो कुछ है वो ला के इनकी नजर कर दो। आगे चल। बाबा फरीद बैठे हुए दरख्त के नीचे, एक बुढ़िया आई, कहा बाबा साहब मेरी बेटी की शादी है। क्या बोला तूने? बाबा साहब मेरी बेटी की शादी है। रुको जरा, सबर करो। है कि एक खातून आपकी बारगाह में हाजिर हुई और फरियाद की कि मेरी 3 जवान बेटियां हैं। क्या बोला तूने? बाबा साहब मेरी बेटी की शादी है। क्या बोला तूने? 3 जवान बेटियां हैं। क्या बोला तूने? बाबा साहब मेरी बेटी की शादी है। आगे चल। कुछ इंतजाम कर दे। ठीक है। फरमाया वो खेत में वो मिट्टी पड़ी है ना, उसके ढेले उठा के ला। वो ढेले उठा करके लाई। वो गैम्बो खुश हुआ। बाबा फरीद ने 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी और एक रिवायत के मुताबिक 3 बार कुल हो अल्लाह पढ़ी। नहीं, पहले क्या बोला? 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान असर के आपने सूरह इखलास बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। माई मिट्टी दा ढेला ले आई ना ते हजरत बाबा फरीद ने अपनी तली उत्ते रख के ना ते फरमांदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा शरीफ पढ़या ते क्या बोला तूने? कलमा शरीफ पढ़या ते ये क्या बात करता है यार। सूरह फातिहा पढ़ी। आहा। सूरह इखलास। आहा। कलमा शरीफ पढ़या ते आहा। सूरह फातिहा पढ़ी। आहा। सूरह इखलास। आहा। कलमा शरीफ पढ़या ते दम किया तो वो सोने के हो गए, सोने की ईंटें बन गई वो। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। उठा के ले गई, शादी भूल गई, खूब खुश हुई। पागल है कि मुझे तो मिल गया सोना बनाने का तरीका, उस बाबा ने मुझे आसान कर दिया। और फिर उसके बाद सुबह ही से लग गई, खूब मिट्टी लाला करके पूरा घर भर दिया। पैसा ही पैसा हो गया। तस्बीह लेकर बैठी, सूरह फातिहा पढ़ती रही, दम करती रही, काले के काले ही रहे मिट्टी के ढेले। उठ करके गुस्से में आई, कहा ओ बाबा तूने 3 बार पढ़ा तो सोना हो गया, मैंने तो 100 बार पढ़ा, पूरा दिन पढ़ा, सोना नहीं हुआ। माई मिट्टी दा ढेले रख के ना ढेर लगा लिया ते माई कलमा पढ़ सारी रात फूका मार दी रही। 3 दिन वो मुसलसल कोशिश करती रही थी। हाय 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 सर, उन इंजीनियरिंग हो चुकी है, तय करना, रुक जाओ। चलिए शुरू करते हैं। 100 बार पढ़ा, पूरा दिन पढ़ा। आहा। कलमा पढ़ सारी रात फूका मार दी रही। आहा। 3 दिन वो मुसलसल कोशिश करती रही। समझ में आया क्या? पूरा दिन पढ़ा। आहा। 3 दिन वो आहा सारी रात फूका मार दी रही। टाइम क़यामत तक जे जवाब दियो ना गल्लां दे, इतनी लॉजिकल गल्लां ने। बाबा फरीद ने फरमाया, मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। सूरह फातिहा तो सही है, लेकिन फरीद जैसी जबान तो ला। तो भाई उस दिन से डरे कि गोरों को उर्दू आ जाए या आपको अंग्रेजी आ जाए, या आपका मजाक ही उड़ाया जाएगा। ओए मेरे नौजवान, ऐसे छिल्ले मुच्छे स्कॉलर को सुनने से पहले हमारा खिताब सुन ले, अगर तसल्ली न हो तो तब दूसरी तरफ रुख करना। ठीक है, समझिए। जिब्राइल बशरी शक्ल में आया, हजरत मरियम के सामने क्यों आया? कहा मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, तुझे साफ सुथरा बच्चा देने के लिए आया हूँ। हजरत जिब्राइल अमीन ने हजरत मरियम के पेट पे फूंक मारी, उससे हमल ठहर गया। क्या बोला तूने? हजरत मरियम के पेट पे फूंक मारी, उससे हमल ठहर गया। इसी से ही पूछ लो, मैंने तो चुप का रोजा रखा हुआ है ना। आगे चल। हजरत जिब्रील अमीन हजरत मरियम के पास जाके खड़े हो गए, कहा कि मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूं, आया क्यों हूं? तुझे सुथरा बेटा देने आया हूं।
फरमाने लगी कि बेटा कैसे होगा, हजरत मरियम के पेट पे फूंक मारी। मैंने शादी भी नहीं की है और मैं कोई बुरी खातून भी नहीं हूं। तो हजरत जिब्रील ने कहा ऐसे ही हो जाएगा। क्या बोला तूने? तो हजरत जिब्रील ने कहा ऐसे ही हो जाएगा। क्या बोला तूने? हजरत मरियम के पेट पे फूंक मारी, उससे अमल ठहर गया। इसी से ही पूछ लो, मैंने तो चुप कर रोजा रखा हुआ है। आगे चल। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं मिट्टी से परिंदा बनाता हूँ, फअनफुखु फी, उसमें फूंक मारता हूँ, क्यों नहीं, फयकून तैरा, सचमुच का परिंदा बन के। लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना है। सामे नजीर शाम तालिब इल्म मटके चुक के पानी भरन चले। हम लोग जाने वाले हैं नदी पानी भरने के लिए। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह टिप्पे ते बैठे ने। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया पुत्रो किधर जांदे हो? अब ये कौन है बे? आके बाबा जी मदरसे दा पानी खारा वे, ओ सामने मिठा चश्मा पानी दा, उत्थों पानी भरन चले आ। तो दरूद वाले हैं। बाबा फरीद फरमाया पुत्रो इन्ना दूर क्यों जांदे हो? मदरसे दा खारा पानी मेरे को लै करो, मैं मिठा कर दिंदा कर। तो जा रे जा यार, तू खुश हो। तालिब इल्म खारे पानी की मटकी भरी, बाबा फरीद के सामने रखी। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूंक मारी, सारे मटके मिठे। तालिब इल्म मटके चुके मदरसे। मोहतमिम पूछा पुत्रो जल्दी क्यों आ गए हो? अके उस्ताद जी चश्मे ते जान की लोड़ ही नहीं पई। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूंक मारी, सारे मटके मिठे हो गए। अकेला सूर्य फातिहा तो सानू भी आंदी है, सब बड़े बड़े पढ़ पढ़ सूर्य फातिहा फूकन, एक मटका मिठा नहीं होया। नहीं सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तालिब इल्म बाबा फरीद को लगे बाबा जी तो सर एक बार सूर्य फातिहा पढ़ी, फूंक मारी, सारे मटके मिठे हो गए। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। असम फूका मार मार थक गए, एक मटका मिठा नहीं होया। बाबा फरीद पर मैं पुत्रो जबान भी ते फरीद आली। यार इन्हें मौलवियों को मसले ना पूछा करो, ये उल्टा मतलब गेम भी खराब कर छड़ते हैं। सवाल पूछ के बंदा कहता है यार एक मुसीबत गले पा ली है। अब बता अल्लाह वालों में ये ताकत है या नहीं? साडी जान छड्डण है, इत्थों इन्हां नूं कड्डो, खुदा दा नाज है जे मुल्क नूं रहने दे काबिल रखना है। बाबा फरीद ने एक बार सूर्य फातिहा पढ़ी, फूंक मारी, सारे मटके मिठे हो गए। ठीक है। कलमा शरीफ पढ़िया ते फूक मारी ना ते ढेला माई नूं पकड़ाया। बाबे दे हत्था च मिट्टी दा ढेला, माई दे हत्था च गया ते सोने दा ढेला। ठीक है, समझ गया। सूरह इखलास बुलंद आवाज में पढ़कर मिट्टी का जो ढेला था उस पर दम कर दिया। जैसे ही दम किया तो वो जर्रा जर बन गया। समझ रहे हो ना? सूरह फातिहा पढ़ी, आहा कलमा शरीफ पढ़िया ते आहा। सूरह इखलास बुलंद आवाज में पढ़कर साले वो अज नहीं बचदे तुसी। आज नवी गल है, हुणे ही दिमाग चाहिए। सामने नजीर श्याम तालिब इल्म मटके चुके पानी भरन चले। लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह टिप्पे ते बैठे ने। बाबा फरीद पूछा पुत्रो किधर जांदे हो? के जवाब दइए, वेले बैठे ने। आके बाबा जी मदरसे दा पानी खारा वे, ओ मिठा चश्मा पानी दा भरन चल। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। ठीक है। मिठा चश्मा उत्थों पानी भरन चले। बाबा फरीद फरमाया पुत्रो इन्ना दूर क्यों जांदे हो? आयो मेरे रब, मदरसे दा खारा पानी मेरे को लै करो, मैं मिठा कर दिता कर सा। क्या बोला तूने? मदरसे दा खारा पानी मेरे को लै करो, मैं मिठा कर दिता कर सा। रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं तुम्हें। तो अफरमाते मुझे प्यास लग गई। अफरमाते आहिस्ता आहिस्ता प्यास ने इतनी शिद्दत इख्तियार की कि मैं निढाल हो गया। अच्छा। तो अफरमाते मैं पानी की तलाश में निकला। एक कस्बा था, मैं आया तो अफरमाते कस्बे में आते ही ना मेरी नजर कुएं पे पड़ी। Oh my God! लेकिन अफरमाते कुएं के ऊपर चरखी नहीं लगी हुई थी, जिस पे वो रस्सी चढ़ती थी ना, अफरमाते वो नहीं थी कोई भी। तो अफरमाते मैंने समझा कि शायद कुआं खुश्क है, पानी नहीं है कुएं में। अफरमाते मैंने आके कुएं में झांका तो कुआं खुश्क नहीं था, पानी था। एहे रहा नहीं जाता। अफरमाते मैं बैठा था तो क्या देखा
कि जंगली हरणों का एक जोड़ा आया, और जैसे मैंने कुएं में झांका था ना, उन्होंने भी झांका। आप फरमाते लेकिन जब मैंने झांका था तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने झांका ना कुएं में, देखा हरणों के जोड़े ने, तो कुएं का पानी ऊपर आ गया। अब हजरत जी शैतान तो पहले ताक में रहता है ना, तू आया तो तेरे लिए पानी कोई नहीं आया, हरण आए तो उनके लिए पानी आ गया। हुण हर चीज दी इंजीनियरिंग होएगी। अब फरमाते हरणों ने पानी पिया, पी के चले गए। फरमाते कुएं का पानी ना ऊपर ही था। तो मैंने कहा चल फरीद तेरे लिए नहीं आया तो है तो हुण उत्ते ही है ना, चल तू भी पी ले। क्या बोला तूने? तो मैंने कहा चल फरीद तेरे लिए नहीं आया तो है तो हुण उत्ते ही है ना, चल तू भी पी ले। मदरसे दा खारा पानी मेरे को लै करो, मैं मिठा कर दिता कर सा। लेकिन बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते जब मैं पानी पीने के लिए गया ना, तो कुएं का पानी फिर नीचे चला गया। लो सामो, यही नहीं अभी और सुनिए। ताल बिल्मा मटके चुक्की, ताल बिल्मा मटके चुक्की, अगे टुरो ना। खारे पानी दे बाबा फरीद के सामने बाबा फरीद ने एक बार सूर्य फातिहा पढ़ी, फूक मारी, सारे मटके मिठे हो गए। एडी बड़ी बोंगी मारी है। ताल बिल्मा मटके चुक्की, मदरसे मोहतमिम पूछा पुत्र जल्दी क्यों आ गए हो? Hey y'all, come look at this. जी चश्मे ते जान दी लोड़ ही नहीं पई, ओ बाबा बैठा भी एक बार सूर्य फातिहा पढ़ी, फूक मारी, सारे मिटके मिठे हो गए। क्या बोला तूने? एक बार सूर्य फातिहा पढ़ी, फूक मारी, सारे मिटके मिठे हो गए। आहा, तो वो औरत गई और मिट्टी का ढेला लेकर आई। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़बान असर कि आपने सूरह इखलास बुलंद आवाज में पढ़कर मिट्टी का जो ढेला था उस पर दम कर दिया। जैसे ही दम किया तो वो जर्रा जर बन गया। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? माई मिट्टी दा ढेला ले आई ना, ते हजरत बाबा फरीद ने अपनी तली उत्ते रख के ना ते फरमांदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा शरीफ पढ़िया ते फूक मारी ना ते ढेला माई नु पकड़ाया। बाबे दे हाथा च मिट्टी दा ढेला, माई दे हाथा च गया ते सोने दा ढेला। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अखिला सूर्य फातिहा तू सानू भी आंदी, असा बड़े बड़े खारे पानी दे मटके लेके बह गए, पड़ पड़ फूका मार, एक मटका मिठा नहीं होया। ठाकुर काम से कियो। तालिब इल्म मटके चुके बाबा जी को, बाबा जी तुसे एक बार सूर्य फातिहा पढ़ी, फूक मारी, सारे मटके मिठे हो गए। असा फूक मार मार थक गए, एक मटका मिठा नहीं होया। कि अगरचे तुमने अमल वही किया लेकिन तुम्हारे मुंह में फरीद की जबान न थी। जुबान भी तो फरीद दी चाहिए ना। बाबा फरीद फरमाया पुत्रो जबान भी तो फरीद आली हो। आप अपने दिमाग खोलें, खुदा के लिए इनके हाथों में ना खेलें। ये आपके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं दीन के नाम के ऊपर, हमारी आंदा आने वाली नस्लें सेकुलर हो जाएंगी। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।